آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ورلڈ انڈیا کا ہیڈ لائن شو۔ آج ہے 8 اکتوبر 2024 اور میں ہوں عادل خان آزاد۔ دنیا کے سب سے بڑے اخباروں سے چنی گئی سب سے بڑی خبروں میں آج آپ دیکھیں گے یمن کے ہوتھیز نے ٹیل اویو پر پہلی بار داغے ایڈوانس ذوالفقار میزائل، رڈار کو کر دیتی ہے فیل۔ حماس کے ٹاپ لیڈر خالد مشعل کا دعویٰ، آنے والے دنوں میں حماس کی ہمت دیکھ دنگ رہ جائے گا اسرائیل۔ یحییٰ سنوار کا بڑا موو، 25 کلو ڈائنامائٹ کے ساتھ اسرائیلی بندھکوں کو اپنے پاس رکھنے کی خبر، نصر اللہ کی طرح نشانہ بنانا مشکل۔ بیروت میں اسرائیل کا بڑا حملہ، حزب اللہ کے لاجسٹکس نیٹ ورک کے ہیڈ کو بھی مار ڈالنے کا کیا دعویٰ۔ نارتھ غزہ میں اسرائیلی فوجی کی موت، اور نارتھ کوریا نے امریکہ کو دی نیوکلیئر حملے کی وارننگ۔ ادھر روس کو یوکرین نے دیا بہت بڑا زخم۔ چلیے بڑی خبریں اور بڑی ہیڈ لائنز دیکھیں، لیکن معذرت کے ساتھ سب سے پہلے میں شروعات کرتا ہوں کہ آج دیر ہو گیا شو لانے میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکٹریسٹی کا تھوڑے پرابلم رہا، تھوڑے ٹیکنیکل ایشوز رہے، اس وجہ سے تھوڑی دیر ہو رہی ہے۔ آپ سبھی کا پیار مل رہا ہے، اس کے لیے شکریہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں خبریں۔ سب سے پہلی ہیڈ لائن تسنیم ایجنسی سے ہے، جس کی خبر بتاتی ہے کہ یمن کے انصر اللہ موومنٹ یا ہوتھیز نے اسرائیل پر اس بار اپنی بالکل نئی میزائل کا استعمال کیا ہے۔ ہوتھیز نے، یمنی آرمڈ فورسز کے اسپوکس پرسن یحییٰ ساری نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2024 کی رات انہوں نے اپنی ہائپر سونک میزائل کا استعمال کیا، ساتھ ہی ذوالفقار میزائل کا بھی استعمال کیا۔ ہوتھیز کا دعویٰ ہے کہ ان کی میزائلیں ٹارگٹ تک پہنچیں، ادھر اسرائیل نے کہا ہے کہ ان کی میزائلیں ہم نے ہوا میں برباد کر دیں۔ یمن کی آرمڈ فورسز نے اسرائیل کے قبضے والے علاقوں کے خلاف فلسطینی ریزسٹنس کے آپریشن الاقصی فلڈ کی پہلی اینیورسری کے موقع پر اسرائیلی دارالحکومت یعنی اسرائیلی کیپٹل ٹیل اویو پر 2 بیلسٹک میزائلیں لانچ کی۔ بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساری نے اس کے بارے میں اطلاع دی، انہوں نے پوری ڈیٹیلز دی۔ ایک ویڈیو بیان وہ ہمیشہ کی طرح جاری کرتے ہیں، اس بار بھی جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ یمنی فوج نے پیر کی رات ٹیل اویو پر ایک نئے ماڈل سمیت 2 بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا۔ ان میزائلوں میں فلسطین 2 میزائل اور ذوالفقار میزائل شامل ہیں۔ ذوالفقار کا استعمال پہلی بار کیا گیا ہے۔ یحییٰ ساری نے بتایا کہ ان آپریشن کے دوران ان میزائلز نے اپنے ٹارگٹس کو کامیابی کے ساتھ حاصل کر لیا، یعنی جہاں کے لیے داغی گئی تھیں وہیں جا کر لگیں۔ اور اسرائیل کیا کہہ رہا ہے، ہم نے آپ کو پہلے بتایا، اس نے کہا کہ ہم نے انہیں ہوا میں مار گرایا۔ ذوالفقار میزائل بے حد خاص ہے، یہ رڈار سے بچ نکلتی ہے، اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے اور اس کی رینج 2000 کلومیٹر ہے، یعنی 1242 میل سے زیادہ۔ اب رخ دوسری خبر کا۔ 8 اکتوبر کی صبح اسرائیل کے لیے بری خبر کے ساتھ شروع ہوئی۔ انادولو کی خبر کے مطابق اسرائیلی فوج نے منگل کو کہا کہ نارتھ غزہ پٹی میں لڑائی میں ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا، دوسرا فوجی بری طرح سے زخمی ہوا ہے، حالت نازک ہے۔ IDF نے ایک بیان میں مارے گئے سولجر کی پہچان 20 سال کے سٹاف سارجنٹ نعام اسرائیل عبدو کی شکل میں کی ہے۔ نارتھ غزہ میں حماس ایک بار پھر سے مضبوط ہو رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے بھی یہاں اپنی فوج کے ایڈیشنل بریگیڈز کو بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ نارتھ میں لڑائی تیز چل رہی ہے، نارتھ میں کئی بار اسرائیل آپریشن چلاتا ہے، جیسے ہی اس کی فوج یہاں سے ہٹتی ہے حماس پھر سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ تیسری خبر حماس سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ حماس کے ٹاپ موسٹ لیڈر ہیں خالد مشعل۔ انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینی ریزسٹنس موومنٹ اسرائیل کے ساتھ جنگ کے 1 سال کے دوران بھاری نقصان اٹھانے کے باوجود راکھ سے فینکس کی طرح اٹھے گا اور وہ لڑاکوں کی بھرتی اور ہتھیاروں کا پروڈکشن جاری رکھے گا۔ فینکس اور راکھ کا کیا رشتہ ہے آگے بتاؤں گا۔ خالد مشعل نے کہا کہ فلسطین کی تاریخ یعنی ہسٹری کئی فیز میں بنی ہے، لکھی ہے، لیکن نہ تو کبھی فلسطین مٹ پایا ہے اور نہ ہی کبھی فلسطینی ختم ہو پائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کا حق حاصل ہونے تک اسرائیل سے ہماری جنگ جاری رہے گی اور گھٹنے ٹیکنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا، یہ معاملہ اپنے باپ دادا کی زمین کا ہے۔ دوستو، ایک پورانک پرندہ ہے جو کہانیوں قصوں میں ملتا ہے۔ ان کہانیوں کے مطابق یہ وقت وقت پر پرندہ خود کو جلا کر مر جاتا تھا اور راکھ سے ایک نئے فینکس کے روپ میں ایک طور پر ابھرتا تھا۔ زیادہ تر کہانیوں کے مطابق فینکس کا پنرجنم، پھر سے جنم، ہر 500 سال میں ہوتا تھا۔ ایک وقت میں صرف ایک فینکس زندہ رہتا تھا، یعنی ایک وقت میں اگر وہ فینکس مانا جائے خالد مشعل کے لفظوں میں تو وہ فلسطین ہوگا جو زندہ رہے گا۔ خیر، بڑھتے آگے۔ اب 2 خبریں دنیا کے دوسرے حصوں کی، پھر واپس ہم مڈل ایسٹ پر، مشرق وسطیٰ پر آ جائیں گے۔
रूस के ऑयल टर्मिनल, हाँ किसी को अगर मेरी उर्दू से दिक्कत हो तो मैं प्योर हिंदी में भी बोल सकता हूँ, बता दीजिएगा, क्योंकि आसान जुबान समझाना बहुत ज़रूरी है। आप समझ पाए वो बढ़िया होगा, वैसे ही बोलूँगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। रूस के एक ऑयल टर्मिनल पर यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा हमला किया है। यूक्रेन की आर्मी के मुताबिक उसने रात में कब्जे वाले फियोदोसिया क्रीमिया में रूस के ऑयल टर्मिनल पर सटीक हमला किया। इस ऑयल टर्मिनल से रूस की फौज की तेल की ज़रूरत पूरी की जाती थी इस पूरे रीजन में जो क्रीमिया के आसपास है। यह नुकसान रूस के लिए एक बड़ा झटका है। अल जजीरा के मुताबिक यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जंग अब अपने एक अहम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, नाटो ममालिक की जो नाटो के मेंबर्स हैं उनकी मदद के बाद यूक्रेन की फौज ने कई अहम ऑपरेशन चलाते हुए रूस को बड़े जख्म दिए हैं और ये जख्म उनमें से एक और बड़ा जख्म है। अब बात नॉर्थ कोरिया वाले की। नॉर्थ कोरिया के हुक्मरान किम जोंग उन ने एक बार फिर अपने दुश्मनों के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल करने की धमकी दी है। किम जोंग उन ने वार्निंग दी है कि वो साउथ कोरिया और अमेरिका के खिलाफ जंग होने पर या लड़ाई छिड़ने पर परमाणु हथियारों यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स का, जौहरी हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब किम जोंग उन ने इस तरह की धमकी दी हो कि वो इन न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस धमकी की टाइमिंग ज़रा अलग है। ये धमकी ऐसे एक वक्त में आई है जब अगले ही महीने नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं प्रेसिडेंट के। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इस दौरान ये बयान आना कई ममालिक के बीच दुश्मनी पैदा कर सकता है और नई टेंशन्स बढ़ा सकता है। अब कुछ अहम और बड़ी खबरें लाइव लिए लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, टाइम्स ऑफ इजराइल की 8 अक्टूबर की खबर है जो उन्हीं की पिछली कुछ खबरों पर एक तरीके से तमाचा जड़ती है। हमने कल आपको एक स्पेशल एपिसोड शाम में दिखाया कि याह्या सिनवार जिंदा हैं, लेकिन उस खबर में एक और खबर थी, उसे अब बहुत तवज्जो दी जा रही है कि पहले माना गया कि याह्या सिनवार मर गए, लेकिन अब सिनवार ने कतर से, जो कतर में बातचीत कर रहे हैं लोग होस्टेज डील और सीज फायर को लेकर, उनसे नए तरीके से कॉन्टेक्ट शुरू कर दिया है। हमने कल आपको बताया था कि याह्या सिनवार ना मोबाइल रख रहे हैं, ना पेजर, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो खत किताबत कर रहे हैं, ख़त लिख रहे हैं, खतूत लिख रहे हैं। उनका जो है वो जाता है ख़त लेकर कोई कासिद और फिर वो जवाब लेकर आता है। कबूतर का तो ज़माना गया। तो फिर यहाँ जो है एक बड़ी बात यह है, इस हेडलाइन में लिखा हुआ है हमास लीडर रिपोर्टेडली हैज़ नॉट, एक तो इंग्लिश से हिंदी बता दे रहा हूँ, एक तो याह्या सिनवार ज़रा भी नरम नहीं हुए हैं, अपने स्टैंड पर कायम हैं, जो शर्तें थी वो हैं, हम ना रफ़ा आपको देंगे ना ही गज़ा में एक भी इजरायली फ़ौजी रहेगा। ये साफ कर दिया गया है याह्या सिनवार की तरफ से। दूसरी बात ये कि ये पता चला है कि 20 होस्टेज अब याह्या सिनवार ने अपने पास रखे हैं। इजराइल के 20 होस्टेज अपने पास सुरंगों में रखे हैं और सिर्फ 20 होस्टेज नहीं, 25 किलोग्राम डायनामाइट भी वो साथ में लेकर चलते हैं। अब अगर कोई इजराइल हिमाकत करते हुए बंकर बस्टर बम, उनका मानना है कि हिमाकत, इजराइल अगर कोई अटैक करता है जैसे हसन नसरल्ला पर किया, पूरी बिल्डिंग को चीरते हुए वो बंकर बस्टर बम बंकर तक गया और वो मर गए, अगर याह्या सिनवार को भी ऐसी मारता है तो आप सोचिए क्या होगा। 25 किलोग्राम वो डायनामाइट भी फटेगा और एक भी इजरायली होस्टेज जो 20 उनके पास है उनमें से किसी की कोई रेशा भी नहीं मिलेगा। इसका इल्ज़ाम नेतन्याहू पर आएगा और उनकी कुर्सी पक्का तौर पे जाएगी नहीं तो कभी उन्हें दोबारा मिलेगी नहीं, ये तो तय हो जाएगा। तो बहुत ही एक अलग तरीके का मूव याह्या सिनवार का ये कहलाया जा सकता है। अब आप सोचिए, ये खबर इजरायली अखबार में है, लेकिन मैंने इसे रात में फिर सोचा, ये खबर आई है या पहुंचाई गई है? क्या याह्या सिनवार ने ये खबर कतर तक पहुंचाई है कि हाँ गुरु 25 किलो डायनामाइट और 20 होस्टेज लेकर चल रहे हैं? बता देना, हमें हसन नसरल्ला बनाने की कोशिश ना करें। ऐसा लगता है कि सिनवार ने बताया है कि सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो फिर गजा में ऑपरेशन और मुश्किल हो जाएगा। इस पूरी रिपोर्ट को हमने पढ़ा तो वो बंदा जो शिन बेट का पहले इंटेरोगेशन याह्या सिनवार की कर चुका है जब वो कैद थे, उस बंदे ने ये बताया है कि याह्या सिनवार का ये मूव बड़ा ख़तरनाक है और हम कई बार
उस तक पहुंचे टनल में, उस टनल तक पहुंचे जहां याहिया सिनवार, बस इसी वजह से हमें हमला रोकना पड़ा कि होस्टेजेस उनके कब्जे में हैं, वहां पर मौजूद हैं जहां यहाँ सिनवार। खैर चलिए बढ़ते हैं। इजरायली आर्मी ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के एक बड़े लीडर को और मार गिराया है, और ये 8 अक्टूबर की हेडलाइन अनादोलू तुर्की की एजेंसी में छपी है। ये बताया गया है कि हिजबुल्लाह के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के हेड को इन्होंने एक बड़ी एयर स्ट्राइक में लेबनान की राजधानी बेरूत के बाहरी इलाकों में, साउथ के इलाकों में मार गिराया है। और ये कहा है कि ये लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के हेड थे, इनका काम आर्म्स ट्रांसफर बिटवीन ग्रुप यानी हिजबुल्लाह एंड ईरान और हिजबुल्लाह के बीच जो हथियारों का आदान प्रदान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, हेल्प के तौर पर भी था, उसको देखना, उसकी निगरानी, उसकी बातचीत, उसका कहाँ पहुँचना है, ये सब इनके ज़ेरे निगरानी था, इनका ज़िम्मा था। तो ये जो हैं मार दिए गए हैं, और इनका नाम भी बताया ये गया है कि सुहेल हुसैन हुसैनी हैं जिनको मारा गया। इनके साथ बहुत से लोग और एक बड़ी एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। खैर अभी हिजबुल्लाह ने इसको कंफर्म नहीं किया है। इजराइल के हवाले से तुर्की की एजेंसी ने ये छापी खबर। हिजबुल्लाह ने रात क्या किया है, उनकी वो आप 3 वीडियो के स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। इन्होंने रात, अब सोचिए कि नॉर्थ के इलाकों से जंग तेल अवीव पहुंच गई, कितना इनसिक्योर होगा इजराइल का बाशिंदा। वो नहीं चाहता होगा नेतन्याहू ये जंग बंद कर दें, अब तो कैपिटल भी सुरक्षित नहीं है, हिफाजत में नहीं है, मतलब महफूज ही नहीं है। गिलोत बेस जो है तेल अवीव के पास जो है, वहाँ पर ये यूनिट 8200 जो आईडीएफ की सबसे ख़तरनाक यूनिट है इंटेलिजेंस की, गिलोट बेस उसका हिस्सा है। वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से रॉकेटों की बारिश की। कल आपने शायद हो सकता है किसी वीडियो में आपने देखा हो कि भाई हमास के लड़ाकों की तरह जो 7 अक्टूबर 2023 को उन्होंने किया था, उन्हीं की तरह कुछ पैराग्लाइडर्स इजराइल में घुस गए। अगर आपने कहीं देखा हो तो मैं इसको ज़रा साफ कर दूं। ये वो पैराग्लाइडर की आप तस्वीर देख लीजिए, होते नहीं ये पैराग्लाइडर्स, पीछे मोटर लगी होती है, उससे बम बम हमास के लड़ाके जाके ऐसी गन लेके सबको मारा था। तो इन्होंने ये कहा है कि इजरायली पुलिस ने बताया कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं था, कोई हिजबुल्लाह के लड़ाके नहीं आए थे नॉर्थ में पैराग्लाइडर से, बल्कि ये पुलिस ट्रेनिंग थी कि कैसे एक से दूसरी जगह इक्विपमेंट्स और सप्लाईज को जो है पहुंचाया जा सके अगर ज़रूरत पड़ती है। खैर मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूं। बाइडेन साहब जो हैं 7 अक्टूबर की पहली एनिवर्सरी पर, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, वो यहूदियों ने एक प्रोग्राम रखा था, उसमें गए, शोक संदेश किया, उन्होंने दुआ पढ़ी, वहाँ पर दिया। ये 7 अक्टूबर में 1200 लोग मारे गए थे इजराइल में, लेकिन 42,000 जो फ़लस्तीनी लगभग मारे जा चुके हैं, उनके लिए मिस्टर जो बाइडेन ने कोई दुआ नहीं की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इन्होंने दुआ की, अच्छी बात है, उनके लिए भी करना चाहिए, लेकिन 42,000 फ़लस्तीनियों का, उन 16,000 बच्चों और 11,000 औरतों का क्या? और ये डोनाल्ड ट्रंप जो इनकी पार्टी के मुकाबले फिर से प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप भी पूरी टोपी यहूदियों वाली लगाए हुए हैं और तमाम रब्बी यहूदियों के साथ खड़े हुए हैं, पर्चियों पे दुआएं लिख रहे हैं, सारे लोगों की पर्चियां हैं जो मारे गए। और इसमें जो है ये ब्रुकलिन में, न्यूयॉर्क के बराबर में, ये खड़े हुए हैं और दुआ कर रहे हैं, बड़े अफसोस में हैं, टोपी ओपी लगा के वैसे ही गेटअप में हैं। हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं, वो कभी सरदार बन जाते हैं, कभी नॉर्थ ईस्ट वाले बन जाते हैं। हो सकता है उन्हीं से कुछ इंस्पायर हो। इलेक्शन का वक्त वहाँ भी है, यहाँ भी जब ऐसा होता है तो होता है। हो सकता है ट्रंप कह रहे हो कि मैं बचपन से यहूदी बनना चाहता था। खैर ये तस्वीरें हैं। चलिए एक बड़ी खबर आपको ये दे दें कि जो मैं परसों भी बता चुका हूँ, ब्रिगेडियर जनरल इराज मस्जिदी डिप्टी कोऑर्डिनेटर हैं आईजीसी के, कुछ फोर्स के, उन्होंने बताया है कि इस्माइल कानी जो हैं, कमांडर जो हैं कुछ फोर्स के आईजीसी के, वो पूरी तरीके से अच्छी हालत में हैं, उनकी हालत ठीक है। उनके मारे जाने की जो भी अफवाहें हैं वो गलत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो को देखने के लिए। उम्मीद ये करते हैं कि अगला शो वक्त पर आए। कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं, फिर से कह रहा हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू।